Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about memorandum of association of a company. The topic which is running, which name is documents required for incorporation of company, or the documents prepared by the promoter. The first document in last class, which is name is memorandum of association, is discussed. The memorandum of association is a charter document which contains all the basic informations of a company, like company's name, company's articles, company's object, company's capital, company's subscribers. All these basic information, company's address, are contained by the memorandum of association. And company cannot go beyond its object clause, otherwise it is called doctrine of ultra vires. That means all the contract which go beyond by the company, which go beyond the powers of company, are void ab initio. Now, in today's class, we are discussing about second document which required for incorporation of company is articles of association. Articles of association. Articles of association is a document which is prepared by the company for internal management or internal procedures of a company. To explain the internal procedures of a company, that means how company will take decision, what are the procedure of appointment of members, directors, employee, salary, transfer of shares, issue of share. There are so many points which are related to internal management of a company are discussed in the articles of association. Articles of association are the rules regarding internal management of a company. These rules are subsidiary to the memorandum of association. As we discussed, memorandum of association is a charter document, that means constitution of company. That means that all the provisions are mentioned in the articles of association never contradict or never intersect the provisions of memorandum of association. If it does so, then it will be declared as void. Hence, should not contradict or exceed anything stated in the memorandum of association. जो बात मैंने कही है वही बात हमारी बुक कहती है कि beyond the powers जाकर आप काम नहीं कर सकते. According to section 2 subsection 5 of the Companies Act 2013, article means the articles of association of company as originally framed or altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or of this act. कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से या किसी प्रीवियस एक्ट में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस बना रखे थे, या जैसे जैसे प्रोविज़न चेंज होंगे वैसे वैसे आप जिनको चेंज करते हुए आए हैं उसी को हम कहेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल बी इन रेस्पेक्टिव फॉर्म्स एज स्पेसिफाइड इन टेबल F, G, H, I and J in schedule first as may be applicable to such companies. There are so many types of company which is discussed in the last classes, like company limited by shares, company limited by guarantee and having share capital, company limited by guarantee and not having share capital, company limited by unlimited company having share capital, company unlimited company not having share capital. These types of company are existed. So articles of association prescribes terms and conditions on all the major points related to articles of association in the tables. That means हमें वही कैटेगरी के प्रोविजंस बनाने होंगे जिस कैटेगरी में हम बिलोंग करते हैं. इज इट क्लियर? However, the companies are free to make their own articles of association. हालांकि आप फ्री हैं अपने articles of association बनाने के लिए, which may be contrary to the clauses of table F, G, H, I, J and in that case articles of association as adopted by company shall apply. कि आप या तो खुद के बना लीजिए बट बेसिक प्रोविजंस को आपको ध्यान में रखना होगा, या फिर ठीक है आप इनमें से किसी टेबल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर?
So this is articles of association. Now in next page we can see in page number 171 there are 2 points, qualification shares and the article generally contains the following matters. Qualification share को define किया जाए to ensure that the director have some stake in the proposed company. As we know, company is an artificial person and run by the directors of company. So we give the directors have to take some share or some part of capital so that the directors can take decisions rationally. डायरेक्टर्स भी बाउंड हो जाएंगे क्योंकि उनका भी हिस्सा कुछ लगा हुआ है, अगर वो डिसीजन सही नहीं लेंगे तो उससे वो भी इफेक्ट होंगे, तो इसीलिए उनको कुछ हिस्सा लेना पड़ता है कैपिटल का, जिसे हम कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर. अगर वो आप हिस्सा नहीं लेंगे दैट मीन्स यू कैन नॉट बिकम डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. आर्टिकल्स यूजुअली हैव अ प्रोविजन रिक्वायरिंग देम टू बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स. They have to pay for these shares before the company obtains certificate of commencement of business. और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले आपको ये चालू करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा. दीज आर कॉल्ड क्वालिफिकेशन शेयर्स. इज इट क्लियर? नाउ देयर आर अप्रॉक्स 33 पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. फॉर एग्जांपल, एक्सक्लूजन होली और इन पार्ट ऑफ टेबल एफ, कि जो टेबल एफ के अलावा है. एडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, दोज कॉन्ट्रैक्ट विच मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स. सो उन्हें अडॉप्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, उन्हें एक्सेप्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होंगे, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स, इट विल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 5. अलॉटमेंट ऑफ शेयर, दैट मीन्स नाउ यू आर अलॉटिंग शेयर सर्टिफिकेट्स टू द पर्सन हु अप्लाइड फॉर शेयर्स इन द कंपनी. कॉल्स ऑन शेयर, दैट मीन्स कि शेयर्स की कैपिटल पार्टीशन में मंगवाना. लीन ऑन शेयर्स, ट्रांसफर, नॉमिनेशन, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स. फॉर फ्यूचर मंथ्स जब्त करना. लीन का मतलब कंपनी अपने शेयर को कभी भी वापस लेने का पूरा अधिकार रखती है. ठीक है. ट्रांसफ़र करना, आप अपनी इच्छा से किसी को ट्रांसफ़र करके जा सकते हैं. अल्ट्रेशन, कैपिटल आपको बढ़ानी है, कम करनी है. बायबैक कर सकते हैं, दैट मीन्स ओवर कैपिटलाइजेशन है तो आप अपनी कैपिटल वापस भी खरीद सकते हैं पब्लिक से, या शेयर सर्टिफिकेट वापस ले लेंगे और पेमेंट कर देंगे. शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा, डीमैटेरियलाइजेशन, फिजिकल शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना. लाइक ये बुक है अपनी, ठीक है, बुक जो है अभी फिजिकल फॉर्म में है, जब आप इसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है. वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट जो फिजिकल फॉर्म है उनको जब इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसी को हम डीमैटेरियलाइजेशन कहेंगे. ठीक है. किस तरह से शेयर्स का कन्वर्ट होगा, क्या वोटिंग राइट्स होंगे, प्रॉक्सीज होंगे, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स. इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस पॉइंट यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड by the promoters is consent of proposed director. That means कि अब हमें उन लोगों की कंसेंट चाहिए जो कंपनी को डायरेक्ट करेंगे, दैट मीन्स डायरेक्टर्स बनेंगे. ठीक है. बिना कंसेंट के, दैट मीन्स मैं कहूँ कि वो पर्सन डायरेक्टर है, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वो अपनी रिटर्न कंसेंट नहीं दे देगा. दैट मीन्स वी हैव टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. हालांकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पर इन सब मेंबर्स के सिग्नेचर होंगे. इसके अलावा MOA और AOA के अलावा रिटर्न कंसेंट ऑफ ईच पर्सन नेम्ड एज अ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, confirming that they agree to act in the capacity and undertake to buy and pay qualification share as mentioned in the articles of association. उन्हें ये कंसेंट देनी होगी कि यस वो डायरेक्टर की पोजीशन पर काम करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए वो क्वालिफिकेशन शेयर्स भी लेंगे. ठीक है. और उसका जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करेंगे जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एग्रीमेंट. The agreement, if any, which is company proposes to enter with any individual for appointment as it is managing director, a whole-time director or manager, which is required to submit it to registrar
फॉर द गेटिंग द कंपनी रजिस्टर। इसके अलावा जो भी एग्रीमेंट आपने लोगों से कर रखे हैं, प्रोफेशनल पर्सन से कर रखे हैं, ताकि वो लोग ताकि रजिस्ट्रार जो है वो परमिशन दे दे, तो वो सारे एग्रीमेंट भी हमें आरओसी को सबमिट करने होंगे। पहले तो एग्रीमेंट करने होंगे, देन उन एग्रीमेंट्स को हमें आरओसी को सबमिट करना होगा। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। A declaration stating that all the legal requirements pertaining to registration have been complied with is to be submitted to the ROC with the above mentioned document for getting the company registered under the law। जो प्रमोटर्स होंगे उन्हें एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देनी होगी कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बताई गई थी एक्ट में और जो डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट करने हैं वो सब हम सबमिट कर रहे हैं और ये सब के सब वैलिड हैं, इसका आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी। दिस स्टेटमेंट कैन बी साइंड बाय एन एडवोकेट, या तो एडवोकेट के थ्रू करवाएंगे, और बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट और अ कोस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। इनमें से किसी से भी हम ऑथोराइज करवाएंगे। who is engaged in the formation of company and by a person in the articles as a director or manager or secretary of the company। एक पर्सन तो वो जो प्रोफेशनल होगा, जैसे कि CA, CS, पोस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, और एक पर्सन वो जो कंपनी का ऑथोराइज पर्सन है, जैसे कि कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का सेक्रेटरी, जो भी इन दोनों के सिग्नेचर होंगे इस पर। देन इसे सबमिट किया जाएगा। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फी अलॉन्ग विद द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट, नेसेसरी फीस हैज़ टू बी पेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कि इन सब के अलावा आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी सबमिट करनी होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सच फीस शैल डिपेंड ऑन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और कितना रजिस्ट्रेशन फीस होगी आपकी शेयर कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको रजिस्ट्रेशन फीस आपको आरओसी को सबमिट करनी होती है। इज इट क्लियर? ये रिसिप्ट हमें मिल जाएगी। नाउ हमारा फर्स्ट जो स्टेज है प्रमोशन का काम वो कंप्लीट हो गया है। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स, की प्रमोटर्स ने ये सब काम किया तो उसके बाद उनकी पोजीशन क्या होगी। प्रमोटर्स अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड एंड गेट टू द पोजीशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बट दे आर नीदर द एजेंट नॉर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। एजेंट मीन्स one person or principal authorize someone to work on behalf of the principal is called agent, or if we give some security to, हमने किसी को सिक्योरिटी दे रखी है, कुछ दे रखा है कि आप इसे अपने हिसाब से मेंटेन कीजिए, दैट पर्सन इज कॉल्ड ट्रस्ट, बट हमें ऑथोरिटी देनी होती है। एज वी कैन सी द कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट दिस टाइम, सो the promoters are neither director nor agent of the company, neither the agent nor trustee of company. Is it clear? They can't be agent as the company is yet to be incorporated. उन्हें agent भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो कंपनी बनी नहीं है। Therefore they are personally liable for all the contracts which are entered by them. और इसीलिए जितने भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने किए हैं उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी, उसके लिए प्रमोटर्स पर्सनली लाइबल होंगे फॉर द कंपनी बिफोर द इनकॉर्पोरेशन इन केस द सेम आर नॉट रेटिफाइड बाय द कंपनी लेटर ऑन। ऑल्सो प्रमोटर्स आर नॉट द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। और ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर्स ने किए हैं उन्हें कंपनी रेक्टिफाइड ही करे या अडॉप्ट करे ही। अगर कंपनी को जेन्युइन लगता है तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा, और नहीं तो फिर प्रमोटर्स उसके लिए पर्सनली लाइबल होंगे। क्यों? और ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो पर्सन आपके बिहाफ पर करता है उसे तो हम वैलिड मानते हैं, बट कंपनी जब बनी ही नहीं, आपको अथॉरिटी मिली ही नहीं थी, तो आपने जो किया उसके लिए आप पर्सनली लाइबल होंगे, कंपनी लाइबल नहीं होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, ठीक है। और ये आगे के जो पॉइंट्स है उसमें भी यही बता रखा है कि प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी एंजॉय अ फिड्यूशियरी पोजीशन विद द कंपनी, ठीक है। आपने जो किया वो विश्वास के रिश्ते से किया, इसलिए हम ये मानते हैं कि आपने मिसयूज़ नहीं किया होगा, बट फिर भी अगर कंपनी को कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन, दैट मीन्स कैंसल करने का पूरा अधिकार रखती है। इज इट क्लियर?
सो ये पॉइंट हमारा डिफाइन करता है पोजीशन ऑफ प्रमोटर। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।